We are starting with our level 1 DC Pandey rotational motion. I'll try to do level 1 objective today. Most of the questions will be have been done only. It's just a revision. Some new sums are there that we'll try to do. So just see question number 1. I hope you all can see the slides which are there. Hello. Yeah. Vira, can you all see the slide? Hello. Hmm. Okay. So question number 1. Question says, can you all hear me now? Hello. Yeah, sir. Okay. Question number 1 tells you moment of inertia of a rod of length L and mass m is passing through an axis L by 4 from one end. So there is a rod. There's a rod over here. Okay. There's a rod. This is central axis. And we know moment of inertia about an axis passing the center is m is equal to. But we don't need from here. We need from an axis passing through L by 4 from one end. So if it is L by 4 from one end, it will be L by 4 from the center also. No? Because this total distance is L by 2. And this I need IO. So we know that moment of inertia about any point towards moment of inertia about the center of mass plus mass into distance. So this is ml square by 12 plus mass into distance is L by 4 ka. So ml square by 12 plus ml square by 16. This answer is 7 ml square by 48. Okay, so this is asked many times in the examination. And answer is also 7 ml square by 48, which I have seen many times. 7 ml square by 48. Okay. Now, we'll come to question number 3. Yeah. The graph between angular momentum and angular velocity for a body in pure rotational motion. Simple it is. If a body is in pure rotational motion, about an axis, this is omega. We know that L will become equal to I omega. Moment of inertia about an axis of rotation is constant. No? L is going to be proportional to be omega, right? So L की जगह यहाँ पे J है. This is L only. ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? Fine. So basic questions are there in the start. You just see question number 6. Okay. Question number 6. A sphere is rolling down on an inclined plane. The acceleration of center of mass is. Okay. Can anyone tell me when a body rolls, the acceleration of center of mass, the formula you know is g sin theta upon 1 plus
k square by r square. Okay. So now this answer, k square by r square is sphere. Sphere ho solid, sphere ho solid, sphere. Can I say this answer will be obviously less than g sin theta? Because the denominator is going to make him less, na? Do you agree, na? ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, fine. There's a very good question, that is question number 5. Question number 5 क्या कह रहा है? Question number 5 कह रहा है string of negligible thickness is wrapped several times along a cylinder, kept on a horizontal surface. A man is standing at a distance L from the cylinder, holds one end of the string and pulls the cylinder towards him. There is no slipping anywhere. There is no slipping anywhere. इसका मतलब rolling हो रहा है. The length of the string passed through the hand of the man when the cylinder reaches the hand. Okay. हमको एक चीज मालूम है कि whenever a body rolls, इसका velocity v होता है, इसका velocity 2v होता है और इसका speed 0 होता है. Can I say the uppermost point is going to cover a distance of कितना? अगर ये L कवर करेगा सेंटर ऑफ मास, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही टाइम में? 12. 12 कवर करेगा ना? हेलो, yes or no? Yes, sir. So this point, this string which is attached, if the center of mass is covering a distance of L, the string will cover a distance of 2L because we know it, right? The uppermost point is covering a distance of 2V. याद रखना ये चीज को. Okay. Now we come to question number 11. 11 पर आते हैं. Same questions again and again are there. So 8. अच्छा चलो question number 7 कर लेते हैं. The ratio of radius of gyration of a hollow sphere to solid sphere. Can anyone tell me what is K for a hollow sphere? I had told you it is root of coefficient into R. कितना coefficient है hollow sphere का? 2/3. Solid sphere का हो जाएगा 2/5. When you divide this, K for hollow sphere, K for solid sphere. Yes or no? कितना आएगा ये? √5/3 आएगा ना? हेलो, ओके, आई हैव मिस समथिंग. ये क्या पूछा है? ये अबाउट विच एक्सिस पूछा है? हेलो, Tangential. हाँ तो ये तो अबाउट द सेंटर है ना, तो ये तो नहीं चलेगा. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी रूट ऑफ होलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं? ये तो होता है 2/3 mr². ये कितना रहेगा? 5/3 mr². I naught will become IC plus mass into distance square. By 3 mr² plus mr². 5/3 mr². मतलब ये I naught है इसका. वैसे ही अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें 2/5 mr² होता है. हो जाएगा 2/5 mr² plus mr², 7/5 mr². कि इधर का क्या रहेगा होलो स्फीयर का? रूट ऑफ 5/3 into r. एंड के इधर का क्या रहेगा? रूट ऑफ 7/5 into r. Can I say k for hollow sphere upon
A for solid sphere, root of 5 by 3, root of 7 by 5, 25 by 21, root of, so 5 by root of 21. This will be the answer. You get it, na? Simple it is. Okay. Now, question number 11. When a sphere rolls down on an inclined plane, then identify the correct statement. So whenever anything rolls down, what is the answer? Come on. What is the work done by frictional force? What are they asking you? What is the work done by frictional force? I C. had discussed. The net work done by frictional force is always 0. ये है क्या? Okay. The friction does positive work. The friction does negative work. What is the answer? C आएगा? Friction is doing negative work. What is the reason for this? Because it is which friction? Static friction, and displacement of point of contact is what, sir? 0. 0. So work done will become force to hem अगर displacement नहीं है, so displacement नहीं है तो work done भी 0 रहेगा. हमने डिस्कस किया है पहले भी. That will be the whole case. Question number 13. A solid sphere rolls down on two different inclined planes of the same height but different inclinations. Can I say they are rolling down on theta 1 and theta 2? हाइट दोनों का सेम है, सपोज हाइट दोनों का सेम है. मैं बोलूंगी बराबर है, दोनों हाइट सेम है. अब हमको एक चीज मालूम है कि दोनों फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन विल बिकम g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square. Velocity when it reaches the bottom is under root 2gh 1 plus k square by r square. Do you remember this thing? Okay. अच्छा ठीक है. Who is depending on theta beta? Hello. Which formula depends on theta? ये तो डिफरेंट है. ये एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो अलग अलग है ना दोनों का. बट कैन आई से वेलोसिटी दोनों का सॉलिड स्फीयर तो वही है ना, तो उसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, और h भी दोनों का सेम है, दोनों इंक्लाइन प्लेन पे. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेस द बॉटम विल बी द सेम. हेलो हेलो. This Yes. velocity is the same on both inclined planes, and this acceleration will be different. So अच्छा, टाइम के बारे में क्या ख्याल है? टाइम टाइम का फॉर्मूला मालूम है, अंडर रूट 2s बाई ए. yes or no? So if a is different, then time will also be different, na? What is the answer? B. Speeds will be same, but time of descent will be different. So, but S will also be different, right? बेटा h दोनों का सेम है, so it will come a function of sin theta. अगर हमने इसको derive करना है ना, so it will come a function of sin theta. See, I'll tell you. S is different, but that will match and बाहर वो निकल जाएगा. Last time हमने prove किया था इसको. Can you tell me what is S in terms of H? S in terms of H याद है किसी को? H S है ना? on sin theta. Sin theta will become H by S. So S will become H upon sin theta. Do you agree with this thing? और A क्या है?
अब देखो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो साइन थीटा का फंक्शन बन गया ना, वो प्रूफ किया था शायद। साइन थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है बेटा। हेलो, Yes, sir. ये तो ये फंक्शन, और आई कैन से टाइम विल बी इनवर्स टू साइन थीटा। अगर थीटा अलग अलग है तो टाइम भी, अगर वो साइन थीटा कैंसिल हो जाता तो आई वुड हैव सेड दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है। Question number 16 is a very nice question. I hope I am not going fast. It is simple questions only. Because एक दो चार बहुत अच्छे questions है इसमें जो डिस्कस करना है। Okay. Question क्या कह रहा है? Question number 16. A cord is wound along a circumference of a wheel of radius r. So there is a wheel of radius r. And इसके ऊपर एक string हमने tie कर दिया. The axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia is I. इसका moment of inertia I है. और यहां से कह रहा है एक weight mg is attached to the end of the cord. And the cord falls from rest. After falling a distance of h, the angular velocity of the wheel, मतलब इसका ओमेगा मांगता है। अच्छा, एकदम इजी है। यहाँ तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाउ मच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन? हेलो, कितना है इनिशियल का? कुछ भी नहीं है ना। वर्क डन कितना कितना है? जल्दी जल्दी बोलो, वर्क डन क्या MGH. प्लस एम जी एच ओ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, किस किस को काइनेटिक एनर्जी मिला है? कैन आई से इसको एक काइनेटिक एनर्जी मिला, ट्रांसलेशन दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। एंड कैन आई से उस इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिला, बट कितना मिला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डू यू एग्री विद मी? इसको मिला ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हेलो, Yes, sir. बस हो गया आंसर। अभी मैनिपुलेट करना है। कैन आई से ये हो जाएगा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, कैन आई से the string is attached at this point, and since it is attached at this point, इसका velocity तो v है, इसका velocity v है। कैन आई से हर पॉइंट का velocity v रहेगा, तो इस पॉइंट का velocity भी कितना रहेगा? v रहेगा, बट दिस पॉइंट इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन, so can I say v is r omega? हेलो, v tangential is r omega, do you agree? Yes, sir. हाँ, तो ओमेगा को लिख सकता हूँ v by r the whole square। यहाँ से, बिकॉज हमको v निकालना है ना, नहीं हमको ओमेगा निकालना है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ से ओमेगा निकालना है, तो हमको अगर ओमेगा निकालना है तो इसको ऐसे ही रहना दो, इसको आर ओमेगा डाल दो, ठीक है ना। हेलो, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर एम जी एच। करेंगे ना? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एम जी एच अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा will become
root of 2 mgh on mr square plus r. This will be the answer. टू mgh आना चाहिए ऊपर, ये gh प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, i plus mr square यहाँ पर m आके आंसर. And this was asked in the JEE main exam. This was asked in the JEE main exam. इसको हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लिया. बट रिमेंबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दो हिस्से होते हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. एंड v is r omega because it is tangential point पर है, तो this v will result in r omega. ठीक है ना? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन. फाइन. क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है. Listen to me. A solid sphere rolls without slipping and presses the spring. ये यार कुछ भी नहीं है. देखो यही वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने कहा था बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है. चलो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी? रोल कर रहा है ना, कितना रहेगा? half m vcm square into 1 plus k square by r square. हाँ, vcm square 1 plus k square by r square. ये बराबर है k square by r square कितना है? 2/5 रहेगा. बराबर है. अच्छा, वर्क डन कितना हुआ? इसने स्प्रिंग को दबा दिया, बराबर है क्या? और अंदर आ गया. यस और नो? तो व्हाट इज वर्क डन? half kx square माइनस के प्लस. minus. फोर्स उधर है ना, एंड फाइनली रुक गया आकर. सिंपल है, हो गया. 2/5 7/5 7/10 mvcm the whole square is half k x maximum the whole square. 7/5 k अंदर आंसर है. 7/5 आंसर will come this d. ठीक है ना? हेलो, yes or no? हेलो. yes x maximum मांगता है ना, तो you can just manipulate ना. 7/5 दिख रहा है. यहाँ पर याद रखना, this kinetic energy was not half mv square, which people make a mistake. It is rolling. Okay. Question number 21. भी कर लेते हैं. 20 is also very nice. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर एक स्क्वायर प्लेट होता है, लेंथ L, what is the moment of inertia about this axis? Does anyone know? बराबर है ना? हेलो, ये भी कितना रहेगा? यस और नो? हेलो, हाँ ना बोलो. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस पे कितना रहेगा? आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई ना. हेलो यार बोलो ना, ये जेड एक्सिस है ना बेटा, ये एक्स है और ये वाई है. सही है? हेलो हेलो हेलो, यस और नो? हेलो, yes क्या sir. बोल रहे हो? अच्छा, अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. मैं एक चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है. देखो, कैन आई से, ये तो मैं प्रूव कर लिया. अब कैन आई से, ये तो ml square by 6 ही रहेगा. कैन आई से दिस z axis could also be written like this also? x and y बना दूं, चलेगा क्या? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा x एक्सिस वाले का? हेलो, बिकॉज दोनों को मिलाकर यही मिलना चाहिए ना. हेलो, यस और नो? सोच के देखो. yes sir. दैट मीन्स
दैट मीन्स ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाले एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सेम है ना। हेलो, दैट मीन्स अगर आप ऐसे कर लो तो ये भी ml²/12 होगा, ये भी ml²/12 होगा, ये भी ml²/12 होगा, सही है ना। कोई भी एक्सिस पर आप कर लो, this will also be I naught, this will also be I naught, this will also be I naught. I proved it over here. That means अगर ये I naught है, ये भी कितना रहेगा एट एनी रैंडम एंगल थीटा, I naught ही रहेगा। हेलो, because both of them should result in ml²/6 ना। हेलो बेटा, yes or no? Yes, sir. हाँ, okay, fine, ठीक है। Now we go to the next question. क्वेश्चन नंबर 21 पर आता है, इसके दो मेथड्स है सॉल्व करने के। अब थोड़ा है ना सीरियस क्वेश्चंस पर आएंगे हम लोग। ध्यान देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस बड़ा r एंड आउटर रेडियस 2r। मतलब क्या हो रहा है, ये this radius is r and this radius is 2r and moment of inertia चाहिए about this axis, ठीक है। हेलो, yes or no? अब इसका मेथड, जनरल कन्वेंशनल मेथड जो है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कह रहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी निकालना है। डज एनीवन नो डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज, हेलो, Mass by volume. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गाय, फुल थिंग। ये वॉल्यूम कितना रहेगा हॉलो स्फीयर का, ये जो वॉल्यूम रहेगा विल बी बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम ना, बिकॉज मैटर तो इधर भरा हुआ है ना। हेलो, Yes, sir. तो इधर 4/3 पाई 2r³ माइनस 4/3 पाई r³, ये हो जाएगा m/4/3 पाई 8r³ माइनस 4/3 पाई r³। ये हो जाएगा 7 7 3 28, तो 3m/28 पाई r³। बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. अब एक काम करते हैं, कैन आई कंसिडर दिस होल कॉन्सेप्ट, दिस होल स्पेयर टू बी मेड लाइक दिस। थोड़ा मेरे साथ में रहना। 2r माइनस दिस r। हेलो, बोलो भाई, Yes, sir. सही तो है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ये चीज है। अच्छा, कोई बता सकता है इस चीज का मास कितना रहेगा? मास ऑफ दिस 2r विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना। हेलो, Yes, sir. इसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी तो हमने पहचान लिया ना, डेंसिटी ये है। तो कैन आई से मास ऑफ 2r विल बी डेंसिटी, डेंसिटी इज 3m/28 pi r³ into volume of this. Mass will be density into volume is 4/3 pi 2r³। Okay, this answer will come 8m/7। अगर आपने कैलकुलेट किया तो आएगा 8m/7।
वैसे ही mass of r will be density, that is 3m by 28 pi r cube into 4 by 3 pi r cube. This answer will come m by 7. हेलो, समझा क्या? हेलो, समझा ना ये चीज? अब मेरी बात सुनो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना रहेगा? ये सॉलिड स्फीयर हो गया, अभी कितना हो जाएगा? हेलो यार, बोलो ना। 2/5 into 8m by 7 into 2r square. हो जाएगा ना? हेलो, क्लियर है ना? और इसका भी कितना हो जाएगा? 2/5 m into r, m आ रहा है, into r square. So I'll write it over there. Moment of inertia of 2r, 2/5. Mass of 2r is 8m by 7 into 8r cube. हेलो, नहीं r स्क्वायर है, सॉरी r क्यूब नहीं है, ये तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है ना? 2/5 mr स्क्वायर है, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा. Moment of inertia r will become 2/5 m, that is m by 7. Net moment of inertia will be moment of inertia of 2r minus moment of inertia of r. Hello, yes or no? Yes, sir. दोनों को माइनस करो, ये हो जाएगा 2/5 m by 7 बाहर, r स्क्वायर बाहर, 8 4 32 माइनस 2/5 m by 7 बाहर r, ये तो 1 ही बनेगा. 31 by 31 आएगा ना? हेलो, यस और नो? देखो जरा कैलकुलेट करके. 2/5 बाहर आ गया, 2/5, हाँ ये देखो जरा. About which axis they want? About the diameter. हाँ, about the diameter तो यही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/7, 35 into 8 32 into 31. That will become 62/35. Getting it? हेलो, करेक्ट है ना? ये अपना कौन सा मेथड है? एक्सपोनेंशियल मेथड. इसका एक शॉर्टकट बुक्स में दिया रहता है ट्रिक के तौर पर, हम लोग ट्रिक से देखते हैं. So moment of inertia for a hollow sphere when outer and inner radius is given is, by trick it is 2/5 m, बड़ो रेडियस रेस टू 5 माइनस छोटो रेडियस रेस टू 5 अपॉन बड़ो रेडियस क्यूब माइनस छोटो रेडियस क्यूब. हेलो 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 हेलो, यस और नो? ये इसका ट्रिक है. इसमें भी आप बड़ा आर की जगह क्या डालेंगे? 2r है, छोटा आर की जगह r ना. हेलो, देखो ना, आई होप यू विल गेट द सेम आंसर. यस और नो बेटा? यस और नो? करेक्ट है, देखो. ओके, आंसर नन ऑफ दीज है यहाँ पे. ये पढ़ने में शायद रॉन्ग दिया आंसर, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड हाफ mr स्क्वायर. दैट इज रॉन्ग. इट्स 2/5 mr स्क्वायर बिकॉज इट इज अ सॉलिड स्फीयर ना. सॉलिड स्फीयर ही तो बनेगा ये. गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा रॉन्ग है आंसर. दैट इज ऑल ओके. देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं. I told you I'll select some
Good questions over here. Understand? 30 तक एटलीस्ट कंप्लीट करना है. 30 तक. We can do it. 22. A rod of uniform cross section of mass m and length L is hinged about one end to swing freely in a vertical plane. में. However, the density is not uniform and varies linearly from hinged end to free end, doubling the value. Okay. मतलब क्या एक रॉड है, and it is hinged about this point. कह रहा है इधर का डेंसिटी रो है, इधर का डेंसिटी 2 रो है. देखो ना डबल हो रहा है ना. अगर ये 0 पकड़ता है, ये L पकड़ता है, तो कहना इसे L पर जाके वो डबल हो गया. The moment of inertia of the rod about an axis of rotation. ठीक है, इजी है. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि go to x and take dx. वही कॉन्सेप्ट तो वही है, पर हम लोग एक काम करता है, जरा डेंसिटी का इक्वेशन लिखते हैं. y is mx plus c के टर्म्स में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, सब लोग इधर मेरी बात सुनना. कैन आई से रो वर्सेस x? कैन आई से दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रो and goes to 2 row covering a distance of L. बराबर है क्या? हेलो. Yes, sir. चलो इसका y is mx plus c लिखो जरा. बोलो. y क्या है? रो है ना. रो को रो x लिखता हूँ मैं. रो m कितना है? m कितना स्लो? Rho by L. x को x रहने देते हैं और c इज रो ना. हेलो, क्या ये इक्वेशन समझा आपको? बिकॉज ये इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा ना, वेरिएशन तो पता नहीं है ना मुझे. हेलो, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ओके, ठीक है. और एक चीज देखना है हमको, आंसर जो है वो m के टर्म्स में दिया. मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. स्टेप 1. व्हाट इज स्टेप 1? हमारा स्टेप 1 क्या होता है हमेशा? हेलो, स्टेप 1 says what? Go to x, take dx. Go to x, take dx, mass dm. ठीक है. अच्छा, go to x, take dx. मेरे साथ में रहना. सेकंड, कैन आई से मास ऑफ द एलिमेंट? मास ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ मालूम नहीं है मेरे को, तो डेंसिटी पता है. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. This is the density. Variation with length, right or not? Density क्या रहेगा? This is density variation with length only. So can I write this as this is density with respect to length? Huh? Hello, into the length चलेगा क्या? हेलो, Yes, sir. density into the length, but density हमको मालूम है ना, that is rho by L into x plus rho into dx. ये मिल गया. Step number 3. Moment of inertia of this element. This element, हम लोग सिर्फ element की बात कर रहे हैं. Mi of element. एलिमेंट एक पार्टिकल है ना, और इस पॉइंट पे मांगता है ना, क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट? एलिमेंट मास इनटू Dm r square. dm x स्क्वायर. सही है. और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से l तक, बिकॉज ऐसे सब टुकड़े रेंजिंग है फ्रॉम 0 टू x, 0 टू l. तो dm की जगह मैं लिख सकता हूँ रो बाय l इंटू एक्स प्लस रो
इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो ना इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं सीधा। हेलो, कितना हो जाएगा, हेल्प करो, बोलो भाई कितना हो जाएगा। रो बाय एल x raised to 4/4. ये हो जाएगा एल 4/4 ना, पहला टर्म। यस और नो? हेलो, रो कितना हो जाएगा, L³/3 ना। आर यू देयर और नॉट, यस और नो बेटा? तो ये हो जाएगा रो बाय L³ 1/4 + 1/3। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. 7/12 रो L³ आए। बट आंसर जो है वो एकदम अजीब दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द आंसर? हमारे को जो आंसर मिला वो किसके टर्म्स में है बाबा, Oh, बोल। रो के टर्म्स में। और आंसर जो दिया वो एम के टर्म्स में। अभी यहाँ पर एक नया एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना पड़ेगा, वेयर वी नीड टू फाइंड द नेट मास ऑफ द होल सिस्टम। सो कैन आई से एक और एक स्टेप ऐड होगा यहाँ पे, स्टेप नंबर 4। कैन आई से नेट मास ऑफ द होल सिस्टम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीएम्स फ्रॉम 0 to L। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, बिकॉज आंसर एम के टर्म्स में, समझ में आ रहा है? हेलो, yes, sir. अब इसको उठा के अंदर सब्स्टिट्यूट करना था रहेगा, बट और कुछ नहीं। व्हाट इज डीएम? डीएम ये है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ रो बाय एल एक्स प्लस रो dx 0 to L। चलो फटाफट, कम ऑन, टेल मी व्हाट विल बिकम। सीधा इंटीग्रेशन करो, रो बाय एल L²/2 प्लस रो एल ना। हेलो, 3 रो L/2 is m, so what will be rho equal to 2m/3l। 2m/3l. 3l नीचे आएगा, सॉरी। अब इसको उठा के put it here, so I will become 7/12 2m/3l, ये उड़ गया, ये स्क्वायर बन गया, ये 2 6 7/18 ml²। हेलो हेलो, did you understand the sum? Did you understand? Yes, sir. हमने नॉर्मल मेथड ही फाइंड किया, बट हमको पता चला कि आंसर m के टर्म्स में है। तो m is the total mass, when it is the net mass you have to integrate all the छोटा m's, so then new extra step will be added over here। बाकी तो आंसर तो सिंपल ही है, नॉर्मल मेथड से ही फॉलो किया हम लोग ने। you get the resultant answer। we come to question number 25। r is the radius of gyration of a body of mass m and radius r, the ratio of rotational to translational kinetic energy, this we have done it only। rotational kinetic energy, does anyone know? तो ट्रांसलेशनल मैंने बताया था, ट्रांसलेशनल में एक नंबर आएगा, अनदर आएगा k²/r², याद है ना? हेलो, Yes, sir. याद है, कॉन्सेप्ट याद है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे r दिया है, r² which r², put r², if they have changed the denomination, ठीक है ना? दिया हुआ है, no issues। we are coming to question number 28, which is another very important question। ध्यान देना, 28 and 30 ध्यान देना अभी सब लोग, बिकॉज 28 and 31 एकदम सिमिलर है। बस ये दो सम अगर आपने कर लिया, 2 3 सम है, और ये पूरा सेक्शन आपको आ जाएगा। ये 2 सम इंपॉर्टेंट है, तो आई एम डूइंग द, अच्छा ये सम
ठीक है, ये सब आप लोग ट्राई करना, मैं सिखा देता हूँ। ये वाला अच्छा वाला सा ना, देखो फटाफट हो जाएगा। टू आइडेंटिकल डिस्क का पोजीशन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, द बॉटम डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। तो पहले वाला जो डिस्क था, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था, एंड इसका काइनेटिक एनर्जी वाज k नॉट। द टॉप डिस्क वाज एट रेस्ट, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इट देन फॉल्स एंड स्टिक टू द बॉटम ऑफ द डिस्क। अच्छा, हमको मालूम है कि इसका मोमेंटम इनर्शिया आया है, जब ये चिपक जाएगा, ऊपर वाला आके चिपक जाएगा, कहना इसे एक काम करता हूँ ना, इसको इनिशियल केस पकड़ते हैं। इनिशियली कौन घूम रहा है, एक ही डिस्क घूम रहा है, ये वाला ओमेगा से, और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, k नॉट है, बराबर है क्या। हेलो, एंड मोमेंटम इनर्शिया आया है इसका घूमने का। फाइनली क्या हुआ, कितनी डिस्क आ गई बेटा, एक के ऊपर ये भी आ गई ना, यस और नो। यस सर। हेलो, मोमेंटम इनर्शिया कितना हो गया, 2i। 2i हो गया ना। तो ऑब्वियसली ओमेगा चेंज हो जाएगा, और ओमेगा चेंज होगा तो k डैश भी चेंज हो जाएगा, यस और नो। हेलो, कैन एनीवन टेल मी व्हाट थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड केस। यार आपने किया है, अभी बोलो ना। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कैन आई से L is constant, the net torque is zero, they are smoother disk, smoother disk, ठीक है, यहाँ पर देना चाहिए स्मूथ डिस्क, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हो ना, मैं एकदम आसान फार्मूला देता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इज L स्क्वायर बाय 2 है, ये तो कांस्टेंट है। आई कितना हो गया सेकंड केस में, हेलो, आई कितना हो गया, ट्वाइस। ट्वाइस हो गया ना। तो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, हाफ। विल बिकम हाफ ना, k नॉट बाय 2 हो गया ना काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। हेलो, ये 2 को मत देखना, ये 2 भी कांस्टेंट है। So if I is becoming, I can say kinetic energy is inverse to I, na? So if I is becoming double, then kinetic energy is going to become half. Yes or no, sir? Angular momentum is constant because net external torque acting on the system is zero. Okay. In between them, whatever torque is there, that is an internal torque. Very important question, question number 28. Please be with me. 28 and 31, same type it is there. आप लोग ट्राई कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन शीट। ये एक लैमिना है, 2D बॉडी है, of mass m in the shape of a triangle, equilateral triangle of an axis shown in the figure. The length of each side is L. Okay. Can I say 2D है कि 3D है? 2D 3D? 2d। 2D है। तो लैम्बडा सिग्मा के रो, हेलो भूल गए आप लोग, सिग्मा। सिग्मा आएगा। लैम्बडा इज मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, एंड रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर सिंस इट इज अ 2D बॉडी, सिग्मा सबसे पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, यस और नो। हेलो, मास इज m दिया हुआ है, एरिया क्या है इसका, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, मालूम है क्या किसको, हाफ बेस हाइट ना बेटा। व्हाट इज द बेस, यार बोलो ना, बेस कितना है, L है। हाइट कितना होता है किसी को मालूम है क्या, ये होता है ना। हेलो, हेलो, यस और नो, बेस इज L, कैन यू ऑल हियर मी, कैन यू ऑल हियर Yes, मी। sir. कितना हो जाएगा ये, 4m बाय √3 L²। ये सबसे पहला मेथड है फाइंड करना, सबसे पहले, क्योंकि लैम्बडा सिग्मा रो क्वेश्चन में दिया रहता है ना। अरे पीछे जो रॉड वाले क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने, उसमें लैम्बडा सिग्मा रो दिया था, याद है ना।
हेलो, गो टू एक्स टेक dx. हेलो, हेलो यार. Yes, sir. तो सबसे पहले हमको देखो, पीछे भी हमने जो रॉड का सम फाइंड किया था उसमें मैंने सिग्मा फाइंड किया ना, रो फाइंड किया ना. याद है डेंसिटी का इक्वेशन फाइंड किया था, ग्राफ बना के, वो स्ट्रेट लाइन बना के. तो सबसे पहला हमको ये चीज निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो लैम्बडा है, सिग्मा है कि रो है. ओके, तो सबसे पहले सिंस 2D बॉडी है, सिग्मा का वैल्यू हमको मिल गया. अभी हम लोग ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं. अब मेरी बात सुनो, ऑपरेशन कैसे करना है, ध्यान देना, मेरी बात सुनो. कैन आई से ये एक्सिस पर निकालना है. कैन आई से गो टू एक्स, टेक एन एलिमेंट dx. सही. go to x and take an element dx. Can I call this half distance as y? बिकॉज देखो ना, जैसे x नीचे जा रहा है वैसे y चेंज होता जा रहा है. हेलो, हेलो. कैन आई से हर एक एलिमेंट का अगर x अलग है तो y अलग है. हेलो, आर यू देयर विथ मी और नॉट बेटा? Yes, sir. हर एक एलिमेंट का अगर अगर x अलग है तो y भी अलग रहेगा. हाँ भाई, गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये एंगल कितना है? ये भी 60. तो जब भी x के साथ में y चेंज होता रहेगा ना, जब भी x के बाद साथ में y चेंज होता रहेगा ना, तो हमको रिलेशन x और y का निकालना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द इक्वेशन. बिफोर स्टार्टिंग द मेथड x और y का इक्वेशन निकालना बहुत जरूरी है. ये सब चीजों को नोट करना है, प्रैक्टिस से ही आएगी. एक सम करने से कुछ नहीं आने वाला है. जितने भी सम्स अंदर दिए हुए हैं जनरली ये है ना, जेई एडवांस में ही पूछा जाता है, बट सिंस थोड़ा थोड़ा ट्रेलर यहाँ पे डीसी पांडे ने दिया है. ठीक है, तो x और y का रिलेशन क्या है? कैन आई से tan 60 will become x by y. हेलो. Yes, sir. x ये √3 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया. तो कैन आई से ये रिलेशन मेरे को मिल गया. मिला कि नहीं? या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x विल बिकम √3 y और dx विल बिकम √3 dy, अगर हम डिफरेंशिएशन वैल्यू लेते हैं इसका. ये सब चीजें बना के मैंने रख दिया. x और y, लैम्बडा, सिग्मा, रो, ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको आना चाहिए. जो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे वरना लैम्बडा, सिग्मा, रो नहीं पता है तो. एंड कैन आई से ये जो एलिमेंट है इसका मास dm है. ठीक है, अब स्टेप 1 शुरू करते हैं. गो टू x, टेक dx फ्रॉम द, ये तो ले ही लिया मैंने. go to x, take dx, I have taken the element na, shaded element. Step 2, mass of the element will be what? Mass per unit area into area of element. Hello, hello. Yes, sir. क्या हो जाएगा यार ये? 4m by √3 L square. एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट कितना है? 2y dx. 2i dx है. सही है ना? अरे एक नॉर्मल वही तो है, नॉर्मल स्ट्रिप है ना ये. तो अगर ये आधा y है तो ये पूरा 2i रहेगा ना. So it will become 2y into dx. Yes or no? Yes or no, sir? Yes, sir. अब एक काम करो, एक काम करते हैं ये. ठीक है, 2y dx हो गया. अब ये y को मैं निकाल देता हूँ, बिकॉज y और x अलग अलग है, तो इंटीग्रेट कैसा करूंगा मैं? तो y की जगह क्या पुट करूंगा मैं? X by √3. y की जगह I'll put x by √3. सही है ना? देखो ना, y की जगह x by √3 डालेंगे हम लोग यहाँ से. dm will become
4m by root 3 L square into 2x by root 3 dx. ये हो जाएगा 8mx dx 3L square. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. ओके, अब स्टेप नंबर 3. अब ये एलिमेंट है, एक्सिस ये है मेरा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट क्या रहेगा, पीछे से कर चुके हैं हम लोग. एम आई ऑफ द एलिमेंट. चलो चलो जल्दी. पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कितना रहता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो डी आई इज गोना बिकम dm into x square integration from 0 to h. Hello, can I say all these elements are ranging from 0 to h ना. हेलो Sir. भाई, ये x का वेरिएबल है ना, यहाँ पर x है ना, ये x है ना, ये dx है ना, तो यहाँ पर x आना चाहिए. एंड x is ranging from 0 to h ना. और कैन आई मेक इट मोर स्पेसिफिक, h की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, √3/2l. हेलो 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 हेलो. फिजिक्स टफ नहीं है यार, ये 2-4 सम बीच में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको रोटेशनल मोशन वैसे ही आता है. पूरा चैप्टर हार्ड नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो रह गए ही ना. तो डीएम की जगह कैन आई राइट दिस इज 8m/3l स्क्वायर, और ये x स्क्वायर और यहाँ का x विल बिकम x³ dx 0 to √3/2l. कितना होता है जल्दी बोलो. हेलो यार, इंटीग्रेट करो. x4/4 √3/2 l 4/4. यस और नो. Yes, sir. ये 4 2 8 हो गया. ये कितना होगा जल्दी बोलो. 2/3 m/l स्क्वायर इंटू कितना हो गया 9/16 L raised to 4.9/L4. ये 3 सा 9 हो गया, 2 8 सा 16 हो गया, तो 3/8 ml स्क्वायर. हेलो 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 हेलो. यस और नो यार बोलो. Yes, sir. 3/8 की तरफ दिया हुआ नहीं है, नन ऑफ दीज में चला जाएगा. ओके हेलो सर. यस और नो. टाइम है क्या हमारे पास? हाँ, और एक टाइम तो है हमारे पास. मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ 31st पर. चलेगा आप लोग को? यही सम सेम हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा. यस और नो. Yes, sir. ओके, बाकी बीच में के सम्स आप लोग कर लेना, वो इजी है, देख कर भी आ जाएगी. पीछे से अगर आपने सॉल्यूशन भी देखा तो आपको आ जाएगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है. वील जस्ट कम टू 31st क्वेश्चन बिकॉज इट इज द सेम टाइप एंड इट इज ऑफ द 3D बॉडी. ओके लिसन ओवर हियर. यहाँ पर प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करता हूँ. ये सब छोड़ दो, ये टाइम पास समय एक्चुअली. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन इज 3/10 mr स्क्वायर. जो प्रूफ करने वाला हूँ अभी मैं, मतलब अगर एक सॉलिड कोन है तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 3/10 mr स्क्वायर रहेगा. और अगर r सेम है क्वेश्चन में और m सेम है क्वेश्चन में, तो हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आंसर है. इतना समझा आप लोग को? हेलो, मैं प्रूफ करूंगा अभी ये 3/10 mr स्क्वायर. हेलो. Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन इज 3/10 mr स्क्वायर. m सेम है, r सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को सेम रहेगा. अब आप बोलेगे सर 3/10 mr स्क्वायर हमको प्रूफ करके दो. प्रूफ कैसे होता है? वो प्रूफ करने के लिए आई टेल यू. अच्छा, कौन सॉलिड है क्या, 3D है 2D है, क्या है जल्दी बोलो. 3D 2D. हेलो, 3D है 3D. क्या? 3D है ना, 3D है. ठीक है. ओके,
तो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है पता है क्या? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच ना। हेलो, याद है किसी को? यस सर। ये पहले बेसिक स्टेटमेंट्स है जो आपको आना चाहिए। सेकंड, अगर ये कोण लेते हैं हम, तो कैन आई से गो टू एक्स टेक dx, मगर dx पे बनेगा क्या? क्या बनेगा बेटा अगर इसको आप काट करेंगे? सर्कल। डिस्क बनेगा। हेलो यार, इसको एक आइसक्रीम इमेजिन करो ना और कट करते रहो उसको एक्स तक, तो एक्स पे क्या निकलेगा? एक डिस्क निकलेगा ना पूरा। हेलो हेलो, यस और नो? यस सर। एक डिस्क निकलेगा पूरा। Okay, ध्यान देना। और मुझे ये एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगता है। go to x take dx, can I say this will be radius of the disk ना, and this is बड़ो r which is the radius of the whole cone। बराबर है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस सर। और ये हाइट ऑफ द कोन है। अच्छा, x और r के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है। कैन आई से x अपॉन r इज h अपॉन बड़ो r? हेलो, क्या मेरे साथ हो? x अपॉन r, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल इज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यस और नो? यस सर। तो व्हाट विल बी छोटो r इक्वल टू x बड़ो r बाय h। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है जो स्टार्ट में क्लियर कर देना है हमको। ये एक, ये डेंसिटी वाला दूसरा, बिकॉज इट इज अ 3D बॉडी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या था? गो टू एक्स टेक dx, तो हमने ले लिया। स्टेप 2, व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंट? चलो जल्दी, हेलो यार कुछ बोलो। विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम into volume of element। can anyone tell me what is the volume of element? एलिमेंट एक डिस्क है, पाई आर व्हाट स्क्वायर dx। इज पाई आर स्क्वायर dx? सही है। ये हो जाएगा, रो की जगह लिख सकते हैं 3m बाय पाई आर स्क्वायर h into volume of element is पाई छोटो r स्क्वायर dx। हेलो 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 हेलो, यस और नो? सही तो है? यस सर। ठीक है, ये भी सही है, ये तो मिल गया। अच्छा, ये पाई और पाई वैसे ही उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3m बाय छोटो r स्क्वायर dx r स्क्वायर h। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाला है? ये आर स्क्वायर का प्रॉब्लम होगा ना, देखो ना, आर स्क्वायर और dx है ना साथ में, तो आर यहाँ से उठाना पड़ेगा ना। तो 3m बाय आर स्क्वायर की जगह एक्स आर बाय एच है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। हेलो, यस और नो सर? ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आएगा बेटा? बोलो जल्दी। 3mx स्क्वायर बाय h क्यूब। ये मिल गया डीएम, डीएम मिल गया। अब स्टेप 3 क्या रहेगा? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट? हेलो, dm x स्क्वायर। नो नो नो, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है क्या? एलिमेंट का, एलिमेंट कौन सा चीज है? डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है? अगर डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर। हाँ, इसका ध्यान रखना है। मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर सिर्फ पार्टिकल का रहेगा, वो पार्टिकल थोड़ी है ये। हेलो, डिड यू गेट इट? यहाँ पर मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स लोगों की, बट जनरली हम लोगों को प्रूफ को डेरिवेशन से उन्होंने निकाल ही दिया है सिलेबस से। पहले ये सब डेरिवेशंस हम लोग किया करते थे, बट अभी फिलहाल दे हैव जस्ट मेड एप्लीकेशंस हो रही है। ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, एम कितना है इसका? डीएम है,
एंड r इसका r स्क्वायर है. डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? यस और नो? Yes, sir. तो dm की जगह अगर मैं लिखूं, हाँ dm यहाँ से ले उठा लेना है 3m x स्क्वायर dx h क्यूब इंटू r स्क्वायर. ये r स्क्वायर फिर से यही करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर. हेलो बाबा बोलो कितना हो जाएगा? 3m x4 r स्क्वायर dx बाय 2h5. बोलो हेलो 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 हेलो. यस और नो? देखो ना कुछ रॉन्ग वॉन्ग है क्या? हेलो प्लीज टेल मी यस और नो. करेक्ट है ना? Yes, sir. अब ये सब एलिमेंट्स कहां से कहां तक रेंजिंग है? ये सब एलिमेंट्स कहां से कहां तक रेंज कर रहे हैं? 0 से लेके h तक ना. अरे भाई ये एक डिस्क है, ये दूसरा डिस्क है, ये तीसरा डिस्क है, ऐसे डिस्क जा रहे कहां से कहां तक है? मेरा x का वेरिएशन कहां से कहां तक है? 0 से लेके h तक ना. कैन आई इंटीग्रेट दिस एंड इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू h? बोलो. Yes, sir. तो अगर इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो. हो जाएगा बस अभी 2 मिनट में आंसर आ जाएगा. जल्दी बोलो. हेलो यार. 3m r स्क्वायर बाई 2h पाए. हेलो क्या हो गया इंटीग्रेशन में? H raised to 5 upon 5. h5 बाई 5. ये h5 उड़ गया. देखो ना कितना आया. 3 by 10 mr square. Just proved. Okay. Hello. Yes or no? So this is how we do it. This is how we do it. Next time I'll continue from 32 onwards and we'll be starting subjective also. And फिर हो जाएगा. ठीक है ना? चलो. Take care. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you. Bye, so thank you. Thank you, sir. Bye, sir.